Good evening friends, welcome to my YouTube channel. Now I have made one another channel, marine related videos will be available on this, and the new channel is @marine tech Pandeji. So this is a video related to non-operational automatic identification system AIS on the ships in Indian water. ये सर्कुलर जो है थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर आप मास्टर हैं और आपके वेसल जो है इंडियन कोस्ट पे हैं तो आपको ये सर्कुलर देखना ज़रूरी है। चलिए, सर्कुलर में क्या है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू बी fitted as per regulations V/19 of the SOLAS Convention, which lists out the navigation equipment to be carried on board ships according to ship's type. So IMO resolution A.1106 bracket में 229 provides revised guidelines for the onboard operational use of the shipborne automatic identification system, and the said revised guidance also empower the master to switch off the AIS in certain circumstances pertaining to the safety and security. The relevant section of the said regulation is as follows. अब देखिए, मास्टर को अथॉरिटी भी दे रहा है कि अगर वेसल की कोई मास्टर इंडियन वाटर्स पे है तो वो AIS को बंद कर सकता है। कब बंद कर सकता है? अगर वेसल के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मैटर हो तो। AIS शुड ऑलवेज बी इन ऑपरेशनल व्हेन द शिप्स आर अंडर वे और एट एंकर। अगर वेसल एंकर में है या अंडर वे है तो उस समय आपका AIS जो है हमेशा ऑपरेशनल होना चाहिए। इफ़ द मास्टर बिलीव्स दैट द continual operation of AIS might compromise the safety or security of his or her ship, or where security incidents are imminent, the AIS may be switched off unless it would further compromise the safety of the security. If the ship is operating in a mandatory ship reporting system, the master should report this action and reason for doing so to the competent authority. Actions of this nature should always be recorded in the ship's logbook together with the reason for doing so. Third number है, in case of situations where the master of the ship of any flag in Indian waters on or transiting through Indian waters decides to switch off the AIS, or AIS of the ship become non-operational, the master of the ship is required to intimate the same to the nearest Indian MRCC immediately and DGCOM center. Entry of occurrence should also be made in the ship's logbook. तो कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन में मास्टर जो है, कोई मास्टर वेसल का जो इंडियन फ्लैग या इंडियन वाटर में ट्रांजिट कर रहा है, अगर वो AIS बंद करता है या उसका AIS नॉन ऑपरेशनल है तो उसको DGCOM सेंटर में या नियरेस्ट इंडियन MRCC में इन्फॉर्म करना है। 4 नंबर है, एनी वेसल इन इंडियन वाटर्स और ट्रांजिटिंग थ्रू द इंडियन वाटर्स विथ नॉन ऑपरेशनल AIS could be interpreted and detained. As such vessel could pose a threat of security. कह रहा है कि कोई भी वेसल जो है इंडियन वाटर में या इंडियन वाटर में है या ट्रांजिट कर रहा है और उसका नॉन ऑपरेशनल AIS है तो वो वेसल जो है डिटेंड हो सकता है, क्योंकि जो है वो सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। 5 नंबर है, अ वेसल इन ड्राई डॉक विल ऑल्सो इंटीमेट अबाउट द स्विचिंग ऑफ AIS टू MRCC एंड DGCOM सेंटर प्रायर इंटरिंग एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन इट इज स्विच ऑन। वह वेसल अगर ड्राई डॉक में है तो भी उसको MRCC को DGCOM को बताना है प्रायर इंटरिंग, मतलब ड्राई डॉक में इंटर करने से पहले, या फिर वो AIS स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता है तो। 6 नंबर है कि considering the security implications for the following provisions shall apply to vessels with non-operational AIS or AIS switched off without informing the concerned authorities.
कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है तो फॉलोइंग प्रोविज़न दिया गया है। अगर नॉन ऑपरेशनल AIS है या AIS स्विच है तो स्विच ऑफ है तो कंसर्न अथॉरिटी को विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंसर्न ऑथोरिटीज़, मतलब अगर विदाउट इन्फॉर्म किए हुए ऑथोरिटी को अगर AIS स्विच ऑफ करता है या किसी वेसल का AIS जो है नॉन ऑपरेशनल है तो उसके लिए फॉलोइंग प्रोविजंस है। आगे चलते हैं। क्या है? A, वेसल शैल बी डिटेन्ड, वेसल आपका डिटेन्ड हो सकता है। B, फी ऑफ ₹8 lakhs इज टू बी पेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू भारत कोष पेमेंट सिस्टम एज पर द प्रिंसिपल कंटेंट in section 25 of DG Shipping Circular number 13 of 2010 for ships operating without valid certificate as non-operational AIS effect safely। मतलब कि 8 लाख का फाइन भी आप पे हो सकता है जो कि भारत कोष के पेमेंट सिस्टम के द्वारा आपको पेमेंट करना है। एक्शन में ऑल्सो भी इनिशिएटेड अगेंस्ट मास्टर एंड ऑनर ऑफ द वेसल, वेसल के मास्टर और वेसल के ऑनर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। 7 number, the provision of para 6 of this order shall only be implemented on the decision of the principal officer of the jurisdictional mercantile marine department. A party aggrieved by the decisions of the principal officer may appeal against the same to the Director General of Shipping। क्या है कि ये प्रोविज़न जो है पारा 6 में दिया गया है, नियरेस्ट प्रिंसिपल ऑफिसर और मार्केट एंड मरीन डिपार्टमेंट में जो जुरिस्डिक्शनल है वहाँ पे इसका प्रावधान है। और अगर वो पार्टी एग्री है या फिर नहीं है तो उसको DG शिपिंग में जाके अपील करने का अधिकार है। तो ये एक छोटा सा सर्कुलर आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि नॉन ऑपरेशनल AIS अगर आपके जहाज़ पे है या आपका जहाज़ जो है AIS होते हुए AIS को स्विच ऑफ करके इंडियन वाटर में ट्रेड कर रहा है या इंडियन वाटर के मतलब किसी भी भाग से ट्रांजिट कर रहा है तो आपका वेसल डिटेन्ड हो सकता है, आपके वेसल पे 8 लाख की फ़ाइन हो सकती है, आपके वेसल के मास्टर और ऑनर्स पे जो है एक्शन लिया जा सकता है DG शिपिंग के थ्रू। तो ये है DG शिपिंग का ऑर्डर नंबर 15 ऑफ 2022। ये इशू हुआ था 27 ऑफ May 2022, बट इट इज़ अ वेरी गुड DGS ऑर्डर विच आई थिंक मास्टर एंड शिप स्टाफ शुड हैव दिस नॉलेज, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि AIS कभी बंद हो जाता है या नॉन ऑपरेशनल हो जाता है तो आपको जो है नियरेस्ट DG में नियरेस्ट जो है पोर्ट कंट्रोल में आपको इन्फॉर्म करना रहता है। So thank you for watching this video. Kindly subscribe and share and like.